Hello students, today we are going to study the chapter number 4 in the history section, making of a global world for class 10th. In the part 1, we discuss in this chapter about the pre-modern world and what is the globalization term, or which type of trades and different types of economic activities was held in the medieval period or in the 15th centuries, 15th, 16th and 18th century up to. And we also discuss about the Silk Route, their link, how the food, culture and different types of other customs trades travels from international steps. Or we also discuss about the different types of conquest, diseases and trade in the part 1. So let we start. In the part 1, as we know the pre-modern world, we talk about the globalization. Globalization, which we often refer to an economic activity or economic system that has emerged since the last 50 years or so. It means the making of a global world has a long history of trade, of migration of people in search of work, the investment of their capital or the movement of capital and much else. As we think about the dramatic sides and visible signs of global interconnections in our lives today. So we need to understand the phases through which this world in such we live has emerged. We need to know about what is the globalization. So globalization is a type of economic activity in which the whole world or the different types of nations are interlinked with each other in the terms of in monetary terms or in the terms of the capital, their investments, or how the people migrate in search of work or different types of opportunities related to their jobs, trades, etc. And as we know that the different types of peoples who travels from the long terms of distances to gain the knowledge, to in search of opportunity of jobs, or to fulfill their daily needs, or to escape persecution. They also carried the goods, monies, valuables, skills, ideas, inventions, and even evenly they also spread and carried germs and diseases with us also. For in the West Asia, before 3000 BCE, there are the different types of active coastal trade links with the Indus Valley civilizations, which is also present in the West Asia. Or for the millennials, the Hindi kaudi or seashells also used in a form of a currency. In the form of a currency, even in the Maldives found their way to China and East Asia. बच्चों हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था वो कैसा था. प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन का सिनेरियो आता है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने देश के डिफरेंट टाइप के कस्टम, कल्चर, ट्रेड, व्यापार इत्यादि को बढ़ाने के लिए कोई डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ आर्थिक गतिविधियां करते हैं जिससे कि हम अपने देश के व्यापार को, अपने देश के फूड को, स्पाइसेस को, टेक्सटाइल्स को, कल्चर को, कस्टम को, रिचुअल्स को एक जगह से दूसरी जगह जब पीपल माइग्रेट करता है, या तो वो जॉब की सर्च में जाता है या फिर कोई उसे अच्छे अवसर की तलाश होती है जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सके, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, अपने लिए लाइवलीहुड को अर्न कर सके, तो इसके लिए वो क्या करता है कि एक देश के लोग दूसरे देश माइग्रेट करके जाते हैं. और जो ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की भावना है वो तभी लोगों में व्याप्त होती है जब उनके अंदर ये भावना जाती है कि हमें अपना आर्थिक डेवलपमेंट या आर्थिक रूप से विकास करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपने देखा होगा, एक छोटे से स्तर पे देखिए तो लोग अपने घरों को छोड़ करके अगर गांव में रहते हैं तो गांव से शहर पलायन करते हैं, शहरों में स्केप आउट हो जाते हैं ताकि उनको वहाँ जाके व्यापार मिले, वहाँ पर जाके उनका अच्छी तरीके से ट्रेड डेवलप हो सके, या फिर वहाँ पर उन्हें जॉब अच्छी मिल सके जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें. तो ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने किया. इसी में डिफरेंट टाइप के जो ट्रैवलर्स थे, यात्री, ट्रेडर्स, व्यापारी, पुजारी, ये सब टाइम टाइम पर आते थे. कभी वो अपनी नॉलेज की तलाश में आए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए आए, कभी वो अपनी
स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए देखा होगा आपने कि बहुत सारे तीर्थ यात्री जो है वो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए वे कई सारे तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं। कोई अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कहीं जाता है, कोई अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए जाता है, कोई अब नए नए आइडियाज़ वगैरह लेके आता है, कोई इन्वेंशंस कर देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक जगह से जब दूसरी जगह आदमी पलायन करता है और जाता है, माइग्रेट करता है, तो या तो अपने साथ वो सामान लाता है, मनी लाता है, मनी और सामान के साथ साथ क्या है, बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, स्किल्स हैं, आइडियाज़ हैं, और यहाँ तक कि आविष्कार भी नए नए वहीं से आते हैं जर्मिनेट होकर के। और यहाँ तक कि इंसान अपने साथ जर्म्स और डिजीज़ भी लाता है। अभी देखिए इस समय जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस आया कहाँ से? वो भी किसी न किसी व्यापार के माध्यम से चाइना के थ्रू यहाँ तक आ गया। अब डिफरेंट टाइप के लोग जो माइग्रेट करके बाहर विदेशों से यहाँ आए, तो वो भी अपने साथ साथ इस वायरस को अपने साथ कैरी कर करके लाए, और अब हमारे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें इस ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। पुराने टाइम में हमारे यहाँ अगर इतिहास देखा जाए 3000 साल पहले का, तो उस समय हिंदी में कौड़ी जो जिसको बोलते हैं वो एक करेंसी का फॉर्म था। मालदीव्स में आज भी देखा गया है कि वो कौड़ियाँ, देखिए हमारे दादी नानी के पास, पुराने लोगों के पास, बूढ़े लोगों के पास आज भी वो कौड़ियाँ, छोटे पे छोटे पैसे, सिक्के आपको मिल जाएंगे। और कई सारी करेंसीज जो है देखी गई हैं कि मालदीव से होते हुए हमारे चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक भी पहुंची। तो यहाँ तक कि ये करेंसीज के अलावा मैंने अभी बताया आपको डिजीज़ में जर्म्स वगैरह भी 17वीं सेंचुरी में ट्रेस किया गया कि ये जर्म्स तक, बीमारियाँ भी ये बहुत सारे देशों से होते हुए हमारे देश में आई हैं, और हमारे देश से भी बहुत सारी बीमारियाँ बाहर को गई। अब आता है जैसे इसमें सिल्क रूट लिंक द होल वर्ल्ड। सिल्क रूट में देखिए, सिल्क रूट जो एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो सकता है प्री मॉडर्न ट्रेड का, जिसने अपने कल्चर को फैलाने के लिए डिफरेंट टाइप के कंट्रीज से अपना इंटरकनेक्शन बनाया। और जो इसमें सिल्क रूट था उसको अपॉइंट किया गया था इसमें वेस्ट बाउंड चाइनीज़ सिल्क कार्गोज, यानी कि पश्चिम में जो चाइनीज़ लोग होते थे वो वहाँ से चाइनीज़ सिल्क यानी कि चाइनीज़ कपड़ा भेजते थे, और वो कार्गोज में भर भर के उस रूट से आता था। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स। हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने ये देखा है कि बहुत सारे उस समय सिल्क रूट्स थे। कोई लैंड के थ्रू आता था, कोई स्थलों से आता था, कोई जो समुद्र मार्ग से आ रहा है, और इन सब ने ये बहुत सारे एशिया के वास्ट रीजन को निटिंग करके एक दूसरे से जोड़ रखा था, और यहाँ से जो है वो इंटरकनेक्टेड होते थे। कोई एशिया से इंटरकनेक्ट हो जाता था, कई सारे यूरोपियन से एशिया से कनेक्ट हुए, कई सारे यूरोपियन जो है नॉर्थ अफ्रीका से भी कनेक्ट हुए। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो इतिहास मिलता है क्रिश्चियन इरा के पहले का, वहाँ पर भी इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है 15वीं सेंचुरी के, और क्रिश्चियन इरा से स्टार्ट होता हुआ ये ट्रेड यहाँ तक 15वीं सेंचुरी तक भी फ्लोरिश होते हुए दिखा है। बट चाइनीज़ पॉटरी, अब इसके बाद देखो चाइना का कपड़ा तो फेमस था ही, उसके साथ साथ चाइना की जो पॉटरी थी, चाइना के जो बर्तन थे वो भी इस रूट से आते थे। और इसके अलावा बर्तन कपड़ों के अलावा मसाले ये इंडिया से चाइना को जाते थे, और साउथ ईस्ट एशिया से भी ये जो कपड़े और मसाले थे वो चाइना को जाते थे। उसके बदले में चाइना की पॉटरी जो है हमारे देश में आया करती थी और एशिया के अदर देशों में जाती थी। इसके अलावा चाइना से होते हुए बहुत प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी यूरोप से होते हुए एशिया तक पहुंचता था, यानी कि यूरोप की कंट्रीज़ में गोल्ड और सिल्वर जो था वो एशिया तक जाता था। इसके अलावा ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, ये सब हाथों हाथ एक दूसरे की जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करता था। अब इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं। क्रिश्चियन मिशनरी जो अर्लियर टाइम में आई वो उन्होंने भी ट्रैवल किया इसी सिल्क रूट से, और वो एशिया को पहुंची। कई सारे मुस्लिम प्रीचर्स भी जो थे, मुस्लिम्स इस्लाम धर्म के जो प्रचारक थे वो भी यहीं पर से आए थे। और फिर उसके बाद में बुद्धिज़्म, जो बौद्ध धर्म था, ये बौद्ध धर्म भी ईस्टर्न इंडिया, यानी कि हमारे यहाँ बिहार में महात्मा बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ से वो सीधे कपिलवस्तु नेपाल से होते हुए सीधे निकल गए कहाँ पर, चाइना से होते हुए उधर गए, और फिर साउथ इंडिया की तरफ गए, तो श्रीलंका तक ये धर्म प्रचार प्रसार हुआ इसका। तो यानी कि इन सब में सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान है। अब आता है कई सारे प्रकार के फूड ट्रैवल्स थे। फूड में जैसे कि आपने देखा होगा नूडल्स वगैरह हैं। नूडल्स वगैरह के लिए हम देखते हैं कि ये चाइना, और ये एक जगह है इटली में जैसे कि सिसली नाम का एक आइलैंड है, वहाँ से पास्ता 15वीं सेंचुरी से होता हुआ पास्ता वहाँ से आया था इटली में से, और इटली से होता हुआ ये अरेबियन ट्रेडर्स के थ्रू कई सारी कंट्रीज़ में, एशिया, अरेबियन कंट्रीज तक फैल गया। ये जो स्पैगेटी और नूडल्स होते हैं, ये इनका कॉमन ओरिजिन देखा है वो चाइना से माना जाता है। तो चाइना ने
हर जगह नूडल्स के इस कार्यक्रम को फैला दिया और आज हर जगह नूडल्स यूज़ किए जाते हैं, स्पैगेटी वगैरह। इसके अलावा पोटैटोज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स, मूंगफली है, मक्की है, टोमेटो, टमाटर, चिली, मिर्ची है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंद, ये सारी की सारी जो चीज़ इनके पूर्वज वगैरह भी जो है लेके आए थे आज से करीब 500 साल पहले। और जब ये जो फूड्स थे ये यूरोप में इंट्रोड्यूस हुए, एशिया में इंट्रोड्यूस हुए, कब? जब क्रिस्टोफर कोलंबस आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उससे पहले से ही ये जितने भी फूड हैं, पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट, मेज, टोमेटो, चिलीज, ये सब इनके पूर्वज लोग है जो यूरोप में और एशिया में लेके आए थे। अब अमेरिकन्स यहाँ पर हम अमेरिका की जब बात करते तो हम अमेरिका में खाली उस समय अमेरिका ही नहीं था, बल्कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एक कैरेबियन कंट्रीज़ भी थी, करेबिया भी था इसमें शामिल, और ये अफ्रीका से रिलेटेड था। और अमेरिकन फूड को जब अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि अमेरिका में जो लोग ओरिजिनली रहा करते थे, वो जब इंडिया में आए तो वो अमेरिकन इंडियंस कहलाए। इन्होंने कई सारी क्रॉप्स वगैरह जो है समय समय पर ये वहाँ से भारत लाते रहे और भारत से यहाँ से नई नई क्रॉप्स वहाँ भी ले जाते रहे। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है भारत और अमेरिका के बीच में, जो वहाँ की क्रॉप्स व्यवस्था को देखने में, ये इसने एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करके रख दिया लाइफ और डेथ के बीच में। यूरोप के पुअर लोग, यूरोप में बहुत गरीबी थी उस समय, तो उन्होंने एक अच्छा सा खाना खाना शुरू किया, अच्छी बिलोंगिंग करनी शुरू कर दी। और यूरोप में जब ये पोटैटो का आविष्कार हो गया तो यूरोप के देश मैक्सिमम पोटैटो का यूज़ करने लगे। आयरलैंड में तो एक बार ऐसा भी हुआ कि पोटैटो में जब वाइट ब्लाइट डिजीज़ हो जाती है, लेट ब्लाइट डिजीज़, तो बहुत सारा पोटैटो ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे लोगों को बीमारी हो जाती है। और उस समय बहुत सारे लोग जो है 1840 के मिड तक बहुत सारे सैकड़ों लोग जो है, वो सैकड़ों से हज़ारों लोग उस समय भूखमरी के शिकार हो गए, क्योंकि उन्हें पोटैटो खाने को नहीं मिला। और पोटैटो के अलावा कुछ होता भी नहीं था यूरोप में पहले। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अब हम देखेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो धीरे धीरे जो है श्रैंक कर गया, सिकुड़ गया 16वीं सेंचुरी तक आते आते। यूरोपियन सेलर्स के जाने के बाद, जिन्होंने सी रूट से जो एशिया आए थे, तो यूरोप से एशिया वो सी रूट से आए थे, तो उन्होंने यूरोप से एशिया आए और एशिया से फिर वो वेस्टर्न ओशियन यानी कि अमेरिका तक पहुँचे। और इसी में जो है आज से कई शताब्दियों पहले इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि कई सारे ट्रेड्स, कई सारे सामान की अदला बदली, और कह सकते हैं कि कई सामान का आदान प्रदान जो है, लोगों को की नॉलेज है, कस्टम है, उनके रिचुअल्स हैं, उनकी परंपराएं, ये सब वाटर के थ्रू क्रिस क्रॉस इधर से उधर, उधर से इधर फैला करते थे। मतलब एक देश से दूसरे लोग जाते थे। कोई पता चला कि इंडिया से एशिया जा रहा है, इंडिया से एशिया से होते यूरोप जा रहा है, कोई यूरोप से फिर अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से फिर वापस आ रहा है, और कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया से होते हुए फिर यूरोप और एशिया में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है। तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस जो है कई सारी चीज़ों का, जैसे गुड्स है, पीपल्स है, नॉलेज है, कस्टम्स है, इन सब आदान प्रदान चलता रहता था, एक्सचेंज होता रहता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारा मतलब एक जाल सा फैल गया था। जो यूरोपियन की एंट्री है, यूरोपियन की एंट्री होने से पहले की बात है कि जब यूरोप में ये चीज़ें फैली तो उसके बाद में पूरे यूरोप में धीरे धीरे और ज़्यादा फैलती चली गई। अमेरिका की डिस्कवरी के पहले से जो अमेरिका था वो रेगुलर जो है सभी लोगों से कट ऑफ था पूरे वर्ल्ड से। लेकिन 16वीं सेंचुरी में जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई तो बहुत सारा लैंड एरिया जो था वहाँ पर एबंडेंट क्रॉप्स, कई सारी क्रॉप्स, मिनरल्स वगैरह, ये सब जो है ट्रेड के रूप में ट्रांसफॉर्म करके धीरे धीरे और लोगों तक पहुँचाए गए। कई सारी कीमती धातुएँ थीं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब इनकी माइंस वगैरह जो है आज भी, जैसे पेरू है, मैक्सिको है, यूरोप की बहुत सारी वेल्थ कंट्रीज़ हैं, ये पेरू और मैक्सिको वहाँ पर हैं, और वहाँ से ये कई देशों में भेजी जाती हैं। और इन्होंने एशिया के साथ मिलकर के कई अपने व्यापार को बढ़ाया। 17वीं सेंचुरी में कई सारी जो कहानियाँ फेमस हैं कि इन्होंने यूरोप से होते हुए साउथ अमेरिका पहुँचे और साउथ अमेरिका में अपनी वेल्थ को फीबल कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। मैंने कई सारे रिसर्च हुए हैं। एल डोराडो नाम की जो है एक जगह वो हैं व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा सर्च हुए और वहाँ पे से ये मिलता है इसका प्रमाण की फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब उसके नाम से एल डोराडो नाम का एक सिटी का नाम रखा गया। और ये जो एल डोराडो नाम की सिटी थी, यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड मिला था। ये कई बार लोगों ने, ट्रैवलर्स वगैरह ने एक्सपीडिशन किया, कई बार जो ट्रैवलर्स वहाँ जब खोज करते करते पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि एल डोराडो नाम का कोई गोल्ड की कंट्री भी है। अब जो पोर्टुगीज़ थे, पुर्तगाली, स्पेन के लोग थे, इन लोगों में मुकाबला चलने लग गया
किस चीज़ का कि अमेरिका पर कोलोनाइजेशन सबसे पहले कौन करेगा, अमेरिका पर आधिपत्य कौन करेगा। और मिड 16 सेंचुरी तक आते आते ये पोर्टुगीज़, पुर्तगाली और स्पेनी लोग, इन लोगों ने अमेरिका पर कोलोनाइजेशन करने का के बारे में सोचा, और इन दोनों में बार बार मुकाबला चलता था कि कभी पुर्तगाली आक्रमण करते थे अमेरिकन पर, कभी स्पेन को करते थे। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट, अब यूरोप में भी ये मुकाबले चलने लग गए कि जस्ट रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, कि यूरोप भी जो है अपने आप को फायर पावर सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे पावरफुल वेपन जो थे वो स्पेन के कॉन्क्यूरर्स ने इस्तेमाल किए, और उन्होंने कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन, जो परंपरागत वेपन्स थे, वो भी इस्तेमाल किए, और उनके साथ साथ अब अलग से उन्होंने एक नया वेपन इस्तेमाल किया जो बायोलॉजिकल वॉर के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि जम्स, डिजीजेज। यानी कि कई सारे पुर्तगालियों ने और स्पेनिश लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि अपना जो अधिकार था दूसरे देशों पर करने के लिए उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई परंपरागत वेपन्स नहीं इस्तेमाल किए, बल्कि उन्होंने अब की बार क्या किया कि कुछ जम्स, कुछ डिजीजेज वगैरह, जैसे स्मॉल पॉक्स थी, तो चेचक का, और इसे बड़ी माता जो छोटी माता स्मॉल पॉक्स हो जाती है, तो इसका वायरस इन्होंने जनरेट करके भेज दिया। अब जैसे कोरोना वायरस को चाइना ने भेजा, वैसे ही इन्होंने भी भेजा, और इससे अमेरिका को पूरे को आइसोलेट कर दिया। अमेरिका में उस समय क्या था, जब चेचक फैली बहुत तेजी से, स्पेन के लोग लेके गए थे, तो उस समय उनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, तो काफ़ी लोग वहाँ पे मर जाते हैं। और ये जो स्पेन अपना कब्जा करने के बारे में सोचता है, इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं वो अमेरिका को हराने के बारे में सोचती है, और अमेरिका पर उन्होंने कॉलोनियल पावर भी डाली। अब इसके बाद आता है बच्चों, जो गन्स वगैरह वो लोग यूज़ कर सकते थे, कोई सारे वेपन्स भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गन्स और वेपन्स का यूज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने आराम से घुसपैठ भी नहीं की, और बिना घुसपैठ किए हुए ही कई सारे हज़ारों लोगों को इस स्मॉल पॉक्स के वायरस से मार डाला। उन्होंने एक डिजीज़ दे दी, जिससे कि बहुत सारे जो उनके जो कह सकते हैं कि विरोधी होते थे, जिस पर वो अधिकार करना चाहते थे, तो उनके ऊपर उन्होंने उनकी इम्यूनिटी को वीक कर दिया, और इस तरीके से काफ़ी सारे लोग, सैकड़ों से हज़ारों लोग मारे गए। 19वीं सेंचुरी में जो भूखमरी थी, हंगर थी, और गरीबी थी, भूखमरी और लाचारी और गरीबी, ये यूरोप में बहुत कॉमन थी। शहरों में तो बहुत भीड़ थी, और लोग बीमारियों से मर जाया करते थे। कई जगह पर जो है वो धार्मिक दंगे हो जाते थे। कई सारे लोगों पर धर्म जो है ज़बरदस्ती लाद दिया जाता था, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। हज़ारों लोग जो है यूरोप में, हज़ारों लोग यहाँ से यूरोप से मतलब यूरोप में भाग गए थे, अमेरिका से यूरोप और कभी यूरोप से अमेरिका, इस तरीके से पलायन किया करते थे। 18 सेंचुरी तक आते आते जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो प्लांटेशन वर्कर्स का मतलब हुआ कि ये लोग जो चाय और कॉफ़ी की खेती करते थे, उन्होंने स्लेव्स को लाना शुरू कर दिया, स्लेव्स को अपने यहाँ कैप्चर करना शुरू कर दिया। और स्लेव्स कहाँ से आते थे? अफ्रीका से आते थे। तो अफ्रीका से वो स्लेव्स लाते थे पकड़ पकड़ के, और उनको कॉटन वगैरह जो ग्रो करते थे, शुगर वगैरह ग्रो करते थे, उनके खेतों में ज़बरदस्ती मार मार के लगाया करते थे, और वो सारा शुगर और कॉटन सेल करते थे यूरोपियन मार्केट्स में। तो हमें देखते हैं कि 18 सेंचुरी में चाइना और इंडिया, उस समय हमारे कंट्रीज़ जो हैं, ये चाइना और इंडिया, ये बहुत मतलब दुनिया में देश, ये जो देश हैं दोनों, चाइना और इंडिया, 18 सेंचुरी तक आते आते बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए थे। और फिर भी यहाँ पर इन्होंने एशियन ट्रेड्स को फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और 15 सेंचुरी में चाइना जो है उसने क्या किया, अपना जो कांटेक्ट है सबसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अपने ऊपर एक बैन सा लगा दिया, और उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, सब देशों से अलग कर लिया। उसका अपना धर्म अलग है, उसकी अपनी लैंग्वेज अलग है, उनका अपना सब कुछ अलग है। आपने देखा होगा कि हम लोग कभी गूगल का यूज़ करते हैं, कभी व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, अलग अलग इंस्टाग्राम वगैरह कई सारी सोशल वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उनका देखिए, उनका नेट अपना अलग है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना अलग है, उनका गूगल क्रोम वगैरह नहीं यूज़ करते, वो सब अपना चाइना मेड होता है सारा सब कार्यक्रम। तो इस तरीके से चाइना ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया, और वो किसी पर इंडिपेंडेंट नहीं रह गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चाइना जो है, जब जैसे उसने अपने आप को आइसोलेट करके डिपेंड बनाया, और मतलब उसने अपने अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाया अपने देश को, और इस तरीके से उसने जो काफ़ी सारे रोल थे, और अमेरिकन्स की जो इम्पोर्टेंस जो राइज कर रही थी, मतलब जो बढ़ती हुई अमेरिका की इम्पोर्टेंस थी, उसको धीरे धीरे घटाया, और उसको अपनी तरफ शिफ्ट किया, ताकि वेस्ट वर्ल्ड, मतलब जो वेस्ट में ये जो ट्रेड वर्ल्ड का सेंटर अमेरिका के रूप में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी। तो जब भी अमेरिका की कहीं ना इम्पोर्टेंस बढ़ती है ट्रेड सेंटर्स वगैरह में, तो चाइना जो है सबसे पहले यही करता है कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा नया काम कर देता है, जिससे कि सारा व्यापार उसकी तरफ मुड़ जाता है। ये शुरू से उसका पुराना इतिहास रहा है चाइना का।
और यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब यूरोप भी जो है एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रूप में उभरने लग गया था। तो बच्चों आज इस चैप्टर में इतना ही, ये पार्ट 1 अब यहाँ पे डिस्कस हो गया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसके पार्ट 2 में मैं इसकी आगे की स्टोरी आपको बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ you like and share my videos, subscribe my channel too, and I hope that you will well understand with my all lessons in all subjects. Please giving your whole cooperation and stay your home and take all precautions. Goodbye.